Hello friends, this is Dr. Agha Chatterjee and I welcome you all to the fourth part of mental health and homeopathy. In the last three parts, we have talked about what is mental health and what are the kind of mental illnesses we are facing in our practice in daily basis. In the second part, we have talked about some medicines and their indications in treatment of mental illnesses of various kind, especially that of depression, that of anxiety, and that of PTSD. In the third part, we have talked with three distinguished homeopaths from three parts of the country. That is Dr. Gaurang Gaikwad from the west, Dr. Yashika Arora from the north, and Dr. Sheetal Bidri from the south. Today, we are joined by an esteemed guest, Ms. Niharika Datta, who is a psychologist by profession and has done her master's in applied psychology. She is currently doing online consultations and has helped lots of people with their problems like depression, anxiety, phobia, overthinking, and other problems also. So today we are going to speak with her and understand what kind of problems does she see in her most consultations and how does she solve it, and definitely how can we as people can help others who are facing this kind of problem to help them overcome these problems. So I welcome Ms. Niharika Datta. Hello, ma'am. How are you? Hi, I'm good. You tell? I'm also good, ma'am. And I forgot to tell this one last thing. She is a very good friend of mine and she has agreed to do this video out of her busy schedule. So let's give her a warm welcome. Ma'am, before starting this conversation, I would like to know what kind of patients do come to you? What are the major problems people come with to you? एक्चुअली ज़्यादातर जितने भी पेशेंट आते हैं ना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, ये जो चारों प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादा है. अभी कोविड के टाइम पे तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है. तो फिलहाल तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है. ओके. और मैम एक्चुअली बेसिकली आई वुड लाइक टू एक्चुअली से फ्यू थिंग्स. हम लोग के पास मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं बेसिकली दे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इन देयर माइंड. with through questioning and through a thorough case study, we come to find out that many people are suffering from anxiety or phobia or depression in their background, which has caused this kind of psychosomatic disorders in them. So when people are actually coming to you, they are coming in the first stage itself, right, ma'am? नहीं यार जी, कोई ऐसे भी होते हैं, मतलब जो आते हैं और मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि उन्होंने पहले डॉक्टर को दिखाया होता है, उन्होंने मेडिसिन भी लिया हुआ होता है. तो क्या होता है ना, वो लोग ना मेडिसिन से ज़्यादा खुश नहीं होते, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है मेडिसिन की वजह से. जैसे कि मेडिसिन के बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होते हैं और कुछ मेडिसिन तो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, राइट. तो उसके वजह से वो लोग इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके आते हैं. तो मुझे बोलते हैं कि मेडिसिन से ज़्यादा खुश नहीं है हम. तो कोई डॉक्टर ऐसे भी है जो उनको समझाते हैं कि काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है मेडिसिन के साथ साथ. तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि काउंसलिंग है क्या, और काउंसलिंग करवाए तो किसके, मतलब कहाँ से करवाए, क्या है प्रोसेस. तो मैं बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के साथ साथ. और ज़्यादातर तो फर्स्ट स्टेज पे तो ऑब्वियसली काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं. तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि सपोज
आप पानी पीते हो, राइट? तो पानी पीते हो तो जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, ठीक है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो आपने वो पानी पिया, फिर आप आ गए, ठीक है, आपको स्टोमक पेन हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए, स्टोमक पेन होगा आपको तो डॉक्टर आपको क्या देंगे, स्टोमक पेन की मेडिसिन देंगे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, राइट? तो आप वापस जाओगे और वापस जाके वही पानी फिर से पियोगे तो आपको फिर से हो सकता है प्रॉब्लम। तो जो डेफिनेटली। तो बिल्कुल जहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइक वाटर सप्लाई में ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, तो ये काम करता है काउंसलिंग, आप समझ रहे हो? तो हाँ मैम। काउंसलिंग मतलब जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना लोगों के, जो थॉट पैटर्न बनते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हो, है ना, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से भी बहुत कुछ होता है, थॉट पैटर्न बनते हैं, या फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, राइट? तो जो थॉट पैटर्न बनते हैं ना, तो अगर कुछ गड़बड़ी हुए थॉट पैटर्न में तो आपके मेंटल बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम की वजह से बहुत डिसऑर्डर, बाद में डिसऑर्डर के रूप ले लेते हैं, वही मेंटल इशू। तो अगर हम बिल्कुल रूट तक जाके अगर उसको ट्रीटमेंट करें तो बिल्कुल सही हो सकता है। तो थॉट पैटर्न जहाँ पे बने थे, जहाँ पे प्रॉब्लम हुए, वहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट करवाए, वो हम अगर जाने, उसके बारे में हम बात करें तो बिल्कुल क्योर हो सकता है। तो मैं ये डेफिनेटली बोलना मैम, आप चाहूंगी कि थोड़ा सा बिल्कुल। ये बताएंगे कि काउंसलिंग के अप्रोचेस क्या क्या आप रखती हैं जनरली? तो मैं बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग, जैसे कि कोई आते हैं, राइट? तो काउंसलिंग के लिए ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम दूसरों के शेयर नहीं कर सकते, अगर कुछ शेयर करेंगे तो बिल्कुल कहीं और बात पहुंच सकते हैं ना, क्योंकि ट्रस्ट इशू वगैरह होते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब जो फील कर रहे हो, जैसे भी फील कर रहे हो, अब मुझे बताओ। मैं पहले तो बिल्कुल सुनती हूँ, उनके बात सुनती हूँ, बिल्कुल बिना जजमेंट के। तो बहुत देर देर तक तो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी कोई कोई बताते हैं, तो जो भी बताना चाहे वो बता सकते हैं, मैं सुनती हूँ। उसके बाद जो एडवाइस देना है, जैसे काउंसलिंग करनी है, मैं करती हूँ। वैसे बहुत सारे ठीक भी हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि लोग काउंसलर के पास जाए, अपना प्रॉब्लम शेयर करें, और काउंसलर जैसे बताएंगे, जैसे काउंसलिंग करनी है, जैसे सेशन देंगे, फॉलो करें उसे, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। जरूर मैम। आज हम लोग एक्चुअली एक ऐसे सिचुएशन और ऐसे सोसाइटी में बिलोंग कर रहे हैं कि आज भी अभी भी लोगों को ये लगता है कि कोई भी मेंटल प्रॉब्लम लेके किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर किसी डॉक्टर के पास जाना, स्टिल इट्स अ वेरी सोशल स्टिग्मा अभी भी बना हुआ है। तो इस सिनेरियो में आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ओपन अप खुद से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आके ओपन अप पहले ही ओपन अप होता है या फिर धीरे धीरे ओपन अप करते हैं अपने आप को? ये सोशल बिल्कुल। स्टिग्मा आप फेस करते हैं कि ये अभी भी ये चीज आपके पेशेंट्स में अभी भी ये चीज है कि आपसे बात करते टाइम एक हेजिटेशन फील करते हैं कि नहीं, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, इज इट ओके दैट आई एम टॉकिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और आई एम टेकिंग अ काउंसलिंग और आई एम टेकिंग अ साइकोथेरेपी? डू यू फील कि आपके पेशेंट्स ये चीज फील करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अ कंसल्टेशन विथ यू? जी बिल्कुल, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं वो लोग कि मतलब कोई-कोई पेशेंट ऐसे भी होता है, क्लाइंट ऐसे होते हैं कि बोलने से पहले ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेन बात पे पहुँचने के लिए ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। पहले तो उन लोगों के साथ अच्छे से बात करो, फिर धीरे-धीरे करके खुलते हैं, क्योंकि पहले पहले तो नहीं बताते हर कुछ बात, तो डेफिनेटली धीरे-धीरे रैपो करके ही डेवलप खोलते करना हैं। बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो ये जो स्टिग्मा है ना, वो हटाने की बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। क्योंकि डिप्रेशन, डेफिनेटली। ओवरथिंकिंग हर किसी को हो सकता है, और बहुत लोग ऐसे हैं ना जो छुपाते हैं, अपने में मतलब रखते हैं, और बाद में यही चीज बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। तो मैं तो बोलूंगी कि पहले कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हो काउंसलर के पास, जाओ, इससे बहुत अच्छा होगा, क्योर हो सकते हैं। यही चीज आज हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा जो ये पूरा एंडेवर है यूट्यूब का, पहले जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है मेंटल हेल्थ एंड होम्योपैथी, ये बेसिकली ये स्टिग्मा को कम से कम जड़ से थोड़ा सा भी अगर मैं लोगों में हटा सकूं, दैट इज माय होल एम ऑफ दिस होल वीडियो। एंड बेसिकली व्हाट आई एम वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट कभी कभार कुछ कुछ चीजों में इट्स नॉट इनफ कि कोई आपके फ्रेंड्स बोलिए, कोई रिलेटिव्स बोलिए, आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। समटाइम्स यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, एंड एट दैट सर्टेन पार्ट you need to see a psychologist or you need to see a doctor with your problems.
And as you were saying, Niharika ji, many people have already consulted doctors and they are not happy with the medicines which have been prescribed to them. And there are many side effects of modern medicines which we have talked about in our videos as well. For depressive drugs, or you say antipsychotic drugs, they have got a lot of side effects, and for which certain physical changes, certain physical manifestations also comes up. दिस साइकोसोमैटिक डिजीजेस लोगों को होते रह रहा है। और हम लोग के, मैं अपने फील्ड में आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी बहुत केसेस आते हैं आजकल के टाइम में, दिस इज मंथ ऑफ सितंबर, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू विच इज नोन एज फॉर पीसीओडी। पीसीओडी को कम करने के लिए जो एक इंटरवेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सितंबर का जो मंथ है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं। So this is also known as the PCOD month. अब ये PCOD is very common in girls in today's date. Almost 1 out of 10 people are having that. But this thing has got a definite relation with emotions also. Suppressed emotions बोलिए, depression बोलिए, किसी का overthinking बोलिए, बहुत सारे चीजें हैं कि जिस चीज को, जो चीज हम लोग का जो hormonal balance है उसको बिगाड़ के ये सब पैथोलॉजी क्रिएट करता है। और वो जब प्रोसेस चालू हो जाता है तो उसको जब तक वो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को एड्रेस नहीं करेंगे हम लोग, तब तक वो जो पैथोलॉजी है वो भी ठीक नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज द पार्ट वी एक्चुअली नीड अ साइकोलॉजिस्ट, गुड साइकोलॉजिस्ट लाइक यू, तो एक्चुअली कि उस जगह को थोड़ा सा, अगर विदाउट मेडिसिन भी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि काउंसलिंग बोलिए या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी बोलिए, जैसे आपने बोला कि रूट कॉज को जब भी आप एड्रेस कर रहे हैं तभी आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। That's what we are talking about. So निहारिका जी, आपको मैं ये सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्या टाइप ऑफ साइकोथेरेपीज अगर हम लोग बोले तो क्या क्या साइकोथेरेपीज आप जनरली ये करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलिए। जनरली तो मैं हिप्नोथेरेपी का यूज करती हूँ, जहाँ पे आते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी आते हैं एक। तो मैं बताना चाहूंगी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो सांस है ना, वो हमारे सोचने के, मतलब सोच और सांस के बीच ना बहुत कनेक्शन है एक। जैसे कि मतलब अगर कभी आप बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो या नॉर्मल हो, ठीक है, तो आप मतलब आपके सांस भी मतलब थोड़ा लंबे होंगे या नॉर्मल सा होगा, मतलब ऐसा ही होगा। और अगर आप जब निगेटिव होते हो, निगेटिव कोई सिचुएशन पे होते हो, या एंजाइटी होता है या टेंशन होता है, तो आपकी सांस जो है ना वो छोटी हो जाती है। तो क्या होता है ना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ना आपके जैसे कि एंजाइटी का प्रॉब्लम वगैरह पे भी बहुत ज्यादा असर करता है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी मैं देती हूँ, खास करके अगर ओवर थिंकिंग वगैरह है तो। और दूसरा जो है एफर्मेशन प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, हम जैसे कि कुछ एक्सपीरियंस करें, लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं हम, उसकी वजह से ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा मतलब निगेटिविटी आ जाती है, निगेटिव थॉट्स वगैरह बैठने लग जाते हैं। तो हम ऐसे तो खुद से पॉजिटिव नहीं कर सकते ना, मतलब कि अब मैं पॉजिटिव रहूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए ना मैं एफर्मेशन प्रैक्टिस देती हूँ। ये बहुत हेल्पफुल है एफर्मेशन प्रैक्टिस भी। उसमें क्या होता है कि आपको एक एफर्मेशन लाइन बोलनी पड़ती है, खुद को सेल्फ एफर्मेशन करनी होती है। जैसे कि मैं शांत हूँ, ऐसा टाइप का कुछ लाइन यूज करिए जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ मैसेज आए अच्छा सा। तो हर एक प्रॉब्लम में अलग अलग एफर्मेशन यूज करना होता है, तो एफर्मेशन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि होता है फोबिया की वजह से मैं एक थेरेपी के बारे में बात करना चाहूंगी, वो है विजुअलाइजेशन थेरेपी। ये भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे कि किसी को कुछ फोबिया होता है किसी जगह से, तो उनको इमेजिन करने देना होता है कि आप इमेजिन करो, सोचो कि आप उस जगह पे हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो ऐसे होते हैं थेरेपी जो खुद से आप खुद को हेल्प कर सकते हो। तो ये भी हो गया। ये छोटे छोटे थेरेपी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। डेफिनेटली मैम, इनफैक्ट ब्रीदिंग जो टेक्निक आपने बोला कि इवन आई कैन टेल यू वन थिंग कि whenever a person is very much anxious, there's generally short and shallow kind of breathing. Yes. This kind of, and if we at that time try to regularize our breathing with long deep breaths, this generally causes a little bit calmer side, मतलब mind को काम करने में help करता है. And also in certain cases of depression, what I have seen and we have learned, even discussed in previous videos also, there's generally an in many cases, not all cases I'm saying, there's generally a involuntary deep sighing.
these kind of, and the patient does not even realizes कि he is doing that. After certain sentences and after a certain amount of time, he's बिल्कुल doing this even involuntarily without even his own noticing. And this is even when we are taking up a case, when we are getting this kind of means, when we are objectively visualizing this kind of symptoms, we can at least I can easily ascertain that something is wrong. And it's not just in the body, something is going on in the mind as well. There's something he is thinking constantly, or there's certain thing which has happened with him or her which is causing this kind of breathing. So this is also a clue that we go deeper into what has happened in the past which led to this kind of pathology, whatever the complaint is he or she is having. तो निहारिका जी, मैं आपसे और एक जो चीज पूछना चाहता था कि आज के टाइम में जो अभी जो हालत है हम लोग का, जैसे कोविड टाइम्स में ऐसा हो गया है कि पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, पीपल जॉब सिक्योरिटी एकदम नहीं है, लोगों का जो एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सिंस मेनी पीपल आर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन हाउस होल्ड, ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, ज्यादा जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर घूमे, नहीं घूम पा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट जो नॉर्मली लोग करते थे वो नहीं हो पा रहे, उसके वजह से एक बहुत स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में डील कर रहे हैं। उस चीज से कैसे आपके सजेशन में कैसे लोग फाइट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मैंने पहले बताई है कि डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। तो उसके लिए भी आप खुद से भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो खुद की। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके पास कोई नहीं होता कि अपनी बात शेयर कर पाए या कुछ बोल पाए। तो ऐसे टाइम पे ना वो जो भी फील कर रहे हैं ना वो लिख सकते हैं। लिखने से भी बहुत कुछ हल्का होता है। तो मैं बोलूँगी कि आपके पास अगर कोई है नहीं तो आप लिखिए, जो भी फील कर रहे हो आप लिखो एक कॉपी में। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। बाकी ब्रीदिंग वगैरह प्रैक्टिस भी, एफर्मेशन प्रैक्टिस रेगुलरली करो, इससे भी बहुत हेल्प होंगे, पॉजिटिव रहेंगे आप। तो बस ओके, थैंक यू। एक्चुअली ये चीज़ बहुत एक्चुअली ज़रूरत था कि पोस्ट लॉकडाउन स्टेटस में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मायने रखती है, और हर जगह में एक्चुअली किसी को भी इवन इन होम्योपैथी वी आर टॉकिंग अबाउट, हर चीज़ के लिए ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर चीज़ के लिए लोगों को मेडिसिन दिया जाए। कुछ चीज़ें अगर माइंड से ही अगर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज ट्राई कि we should try to help. And something any message you want to say कि आज जो सोसाइटी हम लोग जिसमें हैं उस चीज को अगर थोड़ा सा बेहतर कर सके, जैसे अभी मैं और एक सीरियस जो मेन टॉपिक है मैं उसमें घुसने जा रहा हूँ कि जैसे कल हम लोग का 10 सितंबर गया which was suicide prevention day. So we are seeing in today's world this number of suicides are increasing day by day, like it's increasing by a lot, and definitely this is being caused because someone has got something and they are not able to express it to anyone else. This is the main problem because most of the cases में expression अगर किसी भी चीज को मिल जाता है तो फिर मन हल्का हो सकता है, लेकिन since ये नहीं मिल पाता है तो बहुत सारे लोग are fed up of their life and they choose the ultimate thing to end their life. इस चीज को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज नॉर्मल सिविलियंस एंड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं इस पे बोलूँगी अर्का जी, क्योंकि अगर आपके मतलब मैं सबको बोलना चाहूँगी, अगर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर या कोई भी अगर आपको बोले कि मुझे जीने का मन नहीं है, मुझे मरने का दिल कर रहा है, तो इस बात को आप लोग सीरियसली लीजिए। मतलब थोड़ा क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई बोल देना कि मुझे मरने का दिल कर रहा है, जीने का दिल नहीं कर रहा, तो उसके फ्रेंड वगैरह ना बोलते हैं ना कि चल क्या मतलब क्या बोल रहा है, ठीक हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते। तो मैं बोलूँगी कि इस बात को अगर कोई भी ऐसा कुछ आपको दिखा रहा है कि वो प्रॉब्लम में है तो उसको सीरियसली लो आप। एटलीस्ट खुद से कुछ हेल्प नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट किसी काउंसलर के पास उनको लेके जाओ, या बोलो कि क्या फील कर रहे हो मुझे बताओ, क्योंकि कभी कभी टॉक थेरेपी भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब किसी को बोलेंगे खुल के तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जरूर मैम, एक्चुअली यही बात आज समझने की जरूरत है कि लोगों को कि एक्चुअली लोगों का जो मिसबिहेवियर्स है बहुत सारे केसेस में लोग
एक दूसरे का जो ट्रस्ट है तोड़ना पसंद करते हैं rather than living up to it. बहुत बिल्कुल। सारे जगह में लोग एक दूसरे को डाउन करना पसंद करते हैं rather than uplifting each other. ये चीज हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट तो आपको ये बात बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि आजकल के टाइम में जितना हम लोग एडवांस हो रहे हैं एज अ रेस, बट ह्यूमैनिटी की तरफ से और ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। हम लोग हाँ, एज अ बिल्कुल हमारी ह्यूमन सोसाइटी में कम होते जा रहे हैं। तो बोलिए। हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि मतलब अगर कोई एक आगे बढ़ जाए तो उसको खींचना है पीछे कि उसको आगे नहीं बढ़ना है, मुझसे आगे नहीं बढ़ने देना, या फिर मतलब बहुत ज्यादा डाउन देते हैं एक दूसरे को, जो कि अच्छा नहीं है। मतलब जो भी है तो लोगों को थोड़ा उस पर काम करना चाहिए कि डाउन, अगर तुम मोटिवेट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट भी मत करो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का हेल्प नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसका हार्म भी मत करो। हार्म भी मत करो। यही बात है मैम। एक्चुअली इनफैक्ट हम जिस प्रोफेशन में हैं, आप जहाँ पर है, आप भी ये चीज रोज रोज ही ये चीज रियलाइज कर रही हैं, और मैं भी जिस प्रोफेशन में हूँ, इज द सेम थिंग गोइंग अराउंड एंड अराउंड एवरी डे। व्हाट वी get to hear from people surrounding us, it's very much painful actually, ki how things are turning up for everyone, and this is something which we need to address at certain point of time. At least we as a society, if we don't address this thing soon enough, then there's going to be soon a time we are going to reach a stage of barbarism. It's like कि एक दूसरे के पीछे लोग ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ रहे हैं. It's a definite indication that we are on the verge of losing our human side itself. We are moving more towards an animal instinct or some sort of even very less amount of emotions, and we are actually moving towards an era that we are becoming more like robots, that without any consciousness, we are just with intelligence and nothing else. So this is the thing which we wanted to speak about actually, Niharika ji, and thank you so much for your time, and definitely I hope कि आपका मैसेज सबको मिले, and आप जैसे लोगों को हेल्प कर रही है, डेफिनेटली मैं आपसे हमेशा चाहूंगा कि आप ऐसे ही हेल्प करते रहिए. एंड another thing which we always say, and I've always known about this about Miss Niharika, is that, just wait a minute. Okay. I've always known about you is that I've seen your messages all the time. We have met a few psychologists in my time, and no one actually says something like that. If you have no one to talk, please talk to me. I'm there for you. This is one of the most what do I say कि अभी साइकोलॉजी भी एक ऐसा पार्ट हो गया है. मतलब साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे हो जा रहे हैं कि एक प्रोफेशनल कंडक्ट में आते आते एक चीज को ऐसे जगह में आ चुके हैं कि इवन दो दे आर मीन्स दे से कि दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे दे आर जस्ट लाइक दे आर conducting a professional approach, and they are conducting certain, it's kind of a business kind of a thing. And in that sort of respect, that's why I invited you, because I have seen your work and I know the personal touch you give to all of your patients, and this is something extraordinary, and I hope you always continue like that itself. So जी बिल्कुल, ये तो कंटिन्यू करूंगी ही मैं. that is the main thing which is very even so psychologists बोलिए या doctors बोलिए, ये इस जगह में एक जगह होना चाहिए कि we should be not just empathetic towards the people who are suffering, but at certain times we have to be sympathetic. It's not just कि ये अंदर से होना चाहिए, कि ये नहीं कि हाँ होना है बोल के हो रहे हैं, but ये सब अंदर से चीज है कि if your heart is in the right place, then only you can think like that. And I know you are a very good human being, and this is the main thing कि in life कि we need to be, rather than being more successful, we need to be rather more good, isn't it, sir? बिल्कुल बिल्कुल. This is the thing what we wanted to get to all of my viewers today. And any message, Niharika ji, to all the viewers who are watching, means any
message regarding this kind of social stigma about psychological health from a professional, or any message regarding how to prevent these kind of uh, mental problems which are increasing day by day in human in us? How can we just help each other? Any message for everyone? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि जो स्टिग्मा है वो हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम हर किसी को हो सकता है, और ऐसा नहीं कि डिप्रेशन हो इसका मतलब आप जो बोलते हैं कि पागल समझेंगे हमको लोग, ऐसा कुछ है नहीं कि आपको डिप्रेशन हो तो आप पागल हो, ओवर थिंकिंग है तो आप पागल हो। ये सब नॉर्मल बीमारी है। जैसे आपको अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो, अगर चोट लगे तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपके मेंटल कुछ इशू हो रहा है, अब अकेले डील नहीं कर पा रहे हो, तो आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। तो ये हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये तो अकेले मैं नहीं कर पाऊंगी, सबकी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। Definitely, तो ma'am. बस Even I, in my respect, also am trying the same thing कि लोग ज्यादा इस चीज को मतलब अहमियत दे। अभी ऐसा हो गया कि कोई भी चीज आता है, कोई भी इंसिडेंट घटता है, तो ही हम लोग थोड़ा सा इस चीज को लेके कंसर्न फील करते हैं कि नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल एक चीज है, या तो सुइसाइड हो रहा है। कोई अगर फेमस पर्सनालिटी अगर सुइसाइड करता है तो हम सोचते हैं कि नहीं सुइसाइड नहीं। तो बेसिकली अगर खबर को अच्छे तरीके से परखा जाए, और अभी जो रेगुलर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए, हर दिन कम से कम हर 1 घंटे में एक सुइसाइड हो रहा है वर्ल्ड वाइड बिल्कुल में। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिस इज द रेटिंग, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि ये है एक्सटेंट इस चीज का। सुइसाइड अभी ऐसे करके बढ़ रहा है कि आवरली भी एक इंसान मर रहा है ड्यू टू सुइसाइड। और इस चीज को अगर नहीं हटाया जाए तो इट्स गोइंग टू कॉज अ डिजास्टर सून। एंड इट्स नॉट समथिंग कि जैसे ही कुछ पेपर में आए या टीवी में आए तब वो चीज को लेके समझे या फिर सोचे। This is something which we need to keep in our minds, which we need to keep our minds open about कि this is real. Depression, anxiety, phobia, overthinking, all of these things are real. It's not just something wrong with our mind. It is can happen with anyone, and it can happen to everyone. So we need to just take this as a normal disease, a normal problem of a human being, and we need to consult a professional whenever we need it. So with this note, ma'am, I'd like to say कि I'm very much grateful कि आप इस platform में आई, and actually you are trying your level best to help everyone, and this is the same in my approach as well. As much as you know me, you know कि I do the same thing as a whole, and बिल्कुल I am doing everything. Even after talking to you, I have done counseling to many of my patients. I have been doing counseling, but in a better way after talking with you. So, what can I improve in my counseling or psychotherapy techniques? I have been trying to include them in my treatment as well, and it has helped a lot actually. And that's what I wanted to thank you again for that. So, Niharika ji, I hope that you have a very good day, and thanks for coming to my थैंक यू सो channel. मच अर्घा जी कि आपने मुझे बुलाया। मुझे भी बात करके मतलब अच्छा लगा इन सब बारे में, तो थैंक यू सो And मच। I hope आपको, I guess आप होम्योपैथी के बारे में भी आप I think जब से हम बात कर रहे हैं तब से आप थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में भी आप जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, And आपसे तो बहुत ज़्यादा भी सीख रही हूँ। और आप भी ये चीज को, मैंने आपसे शायद पहले भी बोला है कि we are always trying to see the root of the cause, and even so whenever someone's root is in the mind, we try to treat the mind first rather than we बिल्कुल trying to treat the problem itself. That is why बिल्कुल what we are doing, and what she is doing is the same thing. She is trying to address the root of the cause. So with this note, I thank you, and I'll say कि hope we meet again, and या we make a future video about how can we help others with psychotherapies and different kind of a more detailed video for all these things. And I thank you again. So थैंक यू have a सो great मच। day, ma'am. Have a great day, ma'am. Take care. Bye bye. ओके थैंक्स, बाय बाय।